Hello, good morning students. Yeah. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Sit down. तो जैसा कि बच्चों तुम लोग देख रहे हो कि आज जो है टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ए न्यू लेक्चर ऑन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दैट इज बेस्ड ऑन न्यू चैप्टर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन एंड द नेम ऑफ द न्यू चैप्टर इज simultaneous differential equation. Simultaneous differential equation, new type of differential equation. Simultaneous differential equation. New type of differential equation are called simultaneous differential equation, isn't it? Now, obviously, you know all the differential equations have one of the general form. That's it. That is this simultaneous differential equation also has a general form. It is in the form of dx by p equal to dy by q equal to dz by r. There are a lot of simultaneous equations, but we have to study in this section the differential equation is in the form dx by p equal to dy by q equal to dz by r. Obviously, all you know. Yes, we have to describe the PQR, which is the part of PQR. Then PQR is the function of x, y, and z. Obviously, its solution is depend on two integrals, and combining it to get the complete integral, and which is the solution of the simultaneous differential equation. Okay? Yes, sir. Then here we have to discuss about a very important thing in mathematics, that is ratio proportion rule. Ratio proportion rule. The ratio proportion rule is very important in the context of mathematics, and all you know earlier. Ratio proportion rule describes it. If a by b equal to c by d equal to e by f, it is the ratio. You can subtract it, a minus c divided by b minus d, and you can also add a plus c divided by b plus d, and this combining is to get the component or dividend. Okay, and we can also adding a plus c plus e, a plus c plus e, and b plus t plus f. We can add these numerators, and similarly we can add the denominators, and if you multiply LA, then m plus mc plus ne, LA plus mc plus ne, then same part LB plus MD plus NF, and also you can square a square plus c square plus e square. If you square these numerators, then you take a square root, and if you cube sum of cube, taking cube, then you take cube root. Similarly, the denominator part, b square plus d square plus f square. Now once again, if we have the ratio a by b equal to c by d equal to e by f, then you can subtract it the two numerators, and similarly subtract it the two denominators. Similarly you can add. Okay, you know addition and subtraction is the same concept. If you add this a plus c plus f, a plus c plus e, then similarly you add the denominators b plus d plus f. If you multiply L, M and N, and then add similarly for denominators, and if you square the numerators, same theory applied in the denominator, and if you sum of the taking square, then you can take its square root,
and if you take cubing of these factors, then you can take cube root. Similarly, so on. All these factors are equal, you know. All these factors are equal. Okay, students? Yes, sir. Okay, very good. And then all these are equal sign. That's it. We can equate this much into this much into this much. All these are equal. All these are equal. That's why we can equate it if you have the necessary concepts. Now we going to proceed the solution of this simultaneous differential equation. Sit down. Is a solution of simultaneous differential equation. Now we proceed. Okay, students, right now, write down. And for the convenience, zooming this much. उम्मीद कर रहे हैं कि तुम लोग देख रहे होगे पीछे से. पीछे वाला देख समझ में आ रहा? सन्नी देखो, दिख रहा है सन्नी? हम दिख रहे हैं बाबू? यस सर. देखो ना, बदमाशी एकदम कोई नहीं करेगा, सब कोई लिखो अच्छा से. उम्मीद करता हूँ इतना काफ़ी होगा तुम लोग के लिए, तो लिख लिए होंगे. हम लोग आगे बढ़ें और आगे बढ़ के हम लोग देखते हैं साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का होगा. नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ओके, first of all, in order to solve this simultaneous equation, we have to take some multipliers. We have to take some multiplier in such a way that what you do for the solution of the these differential equations, we take one or more multipliers, multiplier like as dx ldx by ldx plus n dy plus n dz divided by lp plus mq plus nr, and equating it if any one of them, dx by p like dy by q, any of these, in such a way that this much is 0, that is lp plus mq plus nr equal to 0. Consequently, if we equate this much, dx by p equal to ldx plus m dy plus n dz by 0, then equating these two, these factors, equating with any one of them, that is ldx plus m dy plus n dz equal to 0. It is an exact integral and can be solvable easily. This is the exact differential equation, exact integral, and can be solvable easily. And on integrating, we get a solution. Similarly, taking another set of multiplier, here we can choose one or more multipliers. Similarly, taking another set of multiplier, we get another solution.
another solution. Okay, there is the one solution, there is another solution. Combining these two integrals, we get the solution of given differential equation. That is the concept. Okay, note down. समझ गए बच्चे? Yes, sir. Any more problem? No, sir. Okay. Write down. देख रहे हो बच्चों, जूम कर दिया गया है तुम लोग के लिए। तो हमने देखा कि एक साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक फॉर्म है एल डी एक्स प्लस एम डी एक्स बाई पी बराबर डी वाई बाई क्यू बराबर डी जेड बाई आर, जहां पर पी क्यू आर को बताना पड़ेगा हमें। तो पी क्यू आर इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। उसको जानने से पहले हमने देखा कि रेशियो प्रोपोर्शन रूल क्या होता है। रेशियो प्रोपोर्शन रूल देखने के बाद हम लोग बताए कि इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें एक से ज़्यादा मल्टीप्लायर की ज़रूरत है, जो कि हमें एग्जैक्ट इंटीग्रल देगा। एक बार मल्टीप्लायर ऐसा लेंगे जिसके कारण ये जीरो हो जाए, जिसके कारण नीचे वाला जीरो हो जाए डिनोमिनेटर पार्ट, और इसको हम लोग किसी एक पार्ट से इक्वेट करेंगे, तो रिजल्टिंग में एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड बराबर जीरो होगा, एन डी जेड बराबर जीरो होगा। और ये इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको हम लोग, चूंकि एग्जैक्ट इंटीग्रल है, जो कि हम लोग आसानी से इसे सॉल्व कर पाएंगे और एक सॉल्यूशन मिलेगा। इसी तरह का एक और हम लोग सेट ऑफ मल्टीप्लायर लेंगे और उसको सॉल्व करके हम लोग अनदर सेट ऑफ एग्जैक्ट इंटीग्रल निकालेंगे और उसे सॉल्व करके दोनों को कंबाइन करेंगे, और कंबाइन करने के बाद हम लोग को मिलेगा इसका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। एनी मोर प्रॉब्लम? नो सर। कभी प्रॉब्लम ही नहीं होता है जी, तुम लोग को पूरा समझ में आ जाता है। चलो एक हम लोग छोटे से सवाल बनाते हैं और कोशिश करते हैं समझने का। लोग थोड़ा बुक बोलना चाह रहे हैं। ओके डन। तो हम लोग पहला इस पर सवाल बनाते हैं। सॉल्व dx by mz minus ny equal to dy by nx minus lz equal to dz by ly minus mx। ओके, तुम देख रहे हो कि ये जो है ना, सबसे पहले बताना पड़ेगा इट इज इन द फॉर्म ऑफ इसको झूम करके यहाँ पे खाली कर देना चाहिए। इट इज इन द फॉर्म ऑफ dx by p equal to dy by q equal to dz by r, dz by r। Then first of all here p का वैल्यू, q का वैल्यू, r का वैल्यू दिखाई दे रहा है। Here we take multiplier, firstly we take the multipliers x, y, z. You have to search those multipliers in such a way that x से अगर इसे गुना करें हम लोग, देख लो ऊपर में भी x नीचे से भी x, तो x से अगर गुना करें तो l आ जाएगा x m z, इसमें पूरे में गुना करें x से तो ये x z आएगा ना, और यहाँ पर गुना करेंगे हम लोग किससे, y से, और इसमें गुना करेंगे z से। तो तुम देखो x m z, यहाँ पर भी आएगा z m x। तो ये जो है ना मिल के इसको दोनों को अगर सबको जोड़ते हैं तो वो जीरो हो जाएगा।
तो सबसे पहले हम लोग को डिनोमिनेटर में 0 बनाने का प्रयास करना है। ओके, ये समझ में धीरे धीरे आएगा एक एक करके। ये हम लोग टाइप 1 चल रहे हैं इसका। तो मल्टीप्लायर अगर लेते हैं तो कितना आता है, एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड डिवाइडेड बाई एल से मल्टीप्लाई किया जाए इसको, एम से मल्टीप्लाई किया जाए एन एक्स माइनस एल जेड को, और एन से मल्टीप्लाई किया जाए एल वाई माइनस एम एक्स को। ये रिजल्टिंग जो आएगा एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड बाई कितना आ जाएगा, 0। अगर ये 0 आता है तो इसको हम लोग किसी एक के साथ अगर इक्वेट करें, नीचे 0 आ जाना चाहिए, डी एक्स बाई एम जेड माइनस ए वाई, किसी एक के साथ अगर इक्वेट करें, चूंकि रेशियो प्रोपोर्शन रूल में हमने देखा है कि सभी आपस में क्या है, बराबर है। डी एक्स बाई एम जेड माइनस एन वाई बराबर एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन डी जेड बाई 0। इसको इक्वेट करेंगे 0 के साथ किसी को भी, तो आ जाएगा एल डी एक्स प्लस एम डी वाई प्लस एन एम डी वाई प्लस एन डी जेड बराबर 0। इट इज एन एग्जैक्ट इंटीग्रल, इट इज एन एग्जैक्ट इंटीग्रल, इट इज एन एग्जैक्ट इंटीग्रल कैन बी solved easily on integrating lx plus my plus nz equal to c। c1 ले लेते हैं हम लोग, नंबर 1। it is a one of the solution, it is one of solution। okay students, taking multiplier x y z in such a way that यहाँ पर हम लोग को ऐसा मल्टीप्लायर चूज करना है जिसके कारण नीचे को जोड़ने पर या फर्स्ट ऑफ ऑल 0 हो जाए। ये पहला मेथड चल रहा है हम लोग, जिसमें हम लोग नीचे डिनोमिनेटर 0 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 0 बनाने के लिए इसमें x से गुना, इसमें x से गुना करेंगे, इसमें y से करेंगे, इसमें z से करेंगे। यहाँ पर हो गया है कुछ गड़बड़ी, टेकिंग LMN एज ए मल्टीप्लायर ले लिया जाए, LMN एज ए मल्टीप्लायर, LMN एज ए मल्टीप्लायर लेके हम लोग इसको बनाए हैं। अब हम लोग दूसरा मल्टीप्लायर लेंगे। LMN एज ए मल्टीप्लायर लेने पर ऊपर में L, नीचे में M, नीचे से N से गुना किया और ये पार्ट खुला है, जिसमें L से गुना करोगे, इसमें M से गुना करोगे, इसमें N से गुना करोगे, तो पाओगे कि नीचे कितना हो जाता है, 0। राइट डाउन, कैसे लग रहा है, 1.6 में बना रहा है। बनाते हैं फोटो कुछ बताएंगे। ओके डन। तो समझ में आया बाबू? यस सर। यस सर। जोर से बोलो। यस सर। गुड, मिटा दिया जाए। आइए हम लोग अनदर सेट ऑफ मल्टीप्लायर लें। आइए हम लोग अनदर सेट ऑफ मल्टीप्लायर लें। सिमिलरली टेकिंग x y z एज ए मल्टीप्लायर लेना तुम लोग धीरे धीरे सीख जाओगे। तो मल्टीप्लायर अगर लेते हैं x dx m dy सॉरी y dy प्लस z dz, तो पाते क्या है, x से इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए mz माइनस ny को, y से मल्टीप्लाई कर दिया जाए nx माइनस lz को, और z से मल्टीप्लाई कर दिया जाए ly माइनस mx को। तो पाते क्या है हम लोग कि mxz zmx कटा nyx nxy, यहाँ पर आ जाएगा nxy, माइनस प्लस कैंसिल हो रहा है। इसका मतलब है कि आ गया x dx y dy and z dz बाई कितना आ जाएगा, 0। इसको अगर किसी के साथ इक्वेट करें, अब इसके साथ ही कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि 0 इधर जाके क्या बन जाएगा, 0 dy बाई nx माइनस lz। अब इसको इक्वेट करेंगे तो x dx y dy z dz इक्वल टू 0। इट इज एन
exact integral, it is an exact integral and can be easily be integrable, can easily be integrable, that is x square by 2 y square by 2 z square by 2 equal to c, x square plus y square plus z square equal to 2c, 2c को हम लोग लिख सकते हैं c dash, that is the second integral and combining these two integral we get the complete solution. हम लोग कैसे कंबाइन करते हैं इस इंटीग्रल को, इसको अभी सीखना नहीं है यहाँ पर, लेकिन अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर सीख सकते हैं कि कैसे कंबाइन किया जाता है. ओके, कंबाइन करने के लिए इसे हम लोग ले लेते हैं, पहला 5 ले लेते हैं और यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में समझाएगा, ये नॉट नेसेसरी, जरूरत नहीं है तुम्हें, लेकिन फिर भी पहला जो इंटीग्रल निकला था मेरा, कितना निकला था? निकला था हम लोग का LX प्लस MY प्लस NZ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और दूसरा निकला है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर 0, कॉन्स्टेंट को हटा देना है. तो इस तरीके से ये कंप्लीट सॉल्यूशन कहलाता है. इसे जानने का तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ इतना ही निकालना है कि दो कंप्लीट इंटीग्रल को निकाल के हमें लिख देनी है कि कंबाइनिंग these two to get complete solution of the simultaneous differential equation. Okay, write down. समझ गया बच्चा? यस सर. तुम समझा बाबू? यस सर. वेरी गुड, बहुत अच्छी तरह तुम लोग समझ रहे हो. हैव ए टी. हटा दो 1.6. जैसा कि स्टूडेंट तुमने देखा कि आज हमने बताया कैसे हम लोग साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके कैसे मल्टीप्लायर को यूज करके हम लोग इसका सॉल्यूशन निकाला करते हैं. लेट अस डेमोन्स्ट्रेट वन मोर क्वेश्चन. Let us demonstrate one more question, students. क्या निशान नहीं, बदमाशी कैसे चल रहा है तुम्हारा? प्रियंका समझ में आ रहा? बाबू किरण बताओ. यस सर. बोलो कैसा लग रहा है, सबको कुछ समझ में आ रहा है? सॉल्व dx by x into y square minus z square बराबर dy by y z square minus x square बराबर dz by z x square minus y square. चलो तब तक तुम लोग थोड़ा सा बनाओ, तब तक मैं एक कॉल ले लेता हूँ. अच्छा कॉल तो अभी नहीं पाएगी. अच्छा चलो. It is in the form dx by p बराबर dy by q बराबर dz by r. Okay students, now we take multiplier. देखिए अच्छी तरह देखिए, मैं तो समझ रहा हूँ कि मल्टीप्लायर क्या लेनी है, लेकिन तुम्हें समझना है. आइए देखिए कि y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ पर है. काश यहाँ पर इसको कभी भी अगर इसका सम 0 होगा तो ये सिमेट्रिकल होगा तभी ना. तो
तो सिमेट्रिकल होने के लिए यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो याद आएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पर y से करेंगे तो वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। देख लो बच्चों कि कैसे ये जीरो हो रहा है सम। अगर इसमें x से हम लोग मल्टीप्लाई कर चुके तो माइनस एक्स जेड स्क्वायर, यहाँ पर हम लोग z से करें तो z से करेंगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इन दोनों को जो अगर ऐड करें तो जीरो आएगा। इसलिए हमें पता चलता है कि हम लोग वी टेक मल्टीप्लायर्स x y एंड z, रिजल्टिंग दैट x dx प्लस y dy प्लस z dz। अगर हम लोग इससे x से गुना करें, मतलब ऊपर भी x से नीचे भी x से, y स्क्वायर माइनस z, इसमें यहाँ भी y से यहाँ भी y से, y स्क्वायर z स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो बच्चों रिजल्टिंग जो आएगी ये क्वांटिटी, ये रिजल्टिंग क्वांटिटी आएगी, इसको अपन जीरो कर देता है, इसको अपन जीरो कर देता है। तो जीरो करने पर क्या पाते हैं हम लोग कि इसी को किसी के साथ अगर इक्वेट करें dx बाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स dx प्लस वाई dy प्लस जेड dz बाई जीरो, और इसको अपन जीरो से इधर मल्टीप्लाई कर देता है तो हम पाएंगे x dx प्लस y dy प्लस z dz equal to 0. And finally on it is an exact integral, it is an exact integral, you know, and on integrating x square by 2 y square by 2 z square by 2 equal to c, and एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2c, इसको हम लोग लिख सकते हैं c डैश, दैट इज द वन कंप्लीट इंटीग्रल। इज इट? राइट डाउन। समझ गए बच्चों? यस सर। समझे? यस सर। कर दिया, आज खत्म है, 3 मिनट और है। It is one of the kind of exact integral, you know, and you see it is absolute exact integral। इसको तुम इजीली इंटीग्रेबल कर पाओगे। यहाँ पर 2c को इधर ले जाके इसको हम लोग अनदर कांस्टेंट बना देते हैं c डैश। ओके बच्चों, तो एक और हम लोग मल्टीप्लायर ले लें। उम्मीद करते हैं उतार लिए होगे तुम लोग। एक और मल्टीप्लायर हम लोग ले लेते हैं, और मल्टीप्लायर लेने के बाद बच्चों इसे हमने एक और मल्टीप्लायर लेके हम लोग इसे एक और सॉल्यूशन निकाल देते हैं। ओके बच्चों, तो देखो कि अगर तुम देखो कि सेकंड मल्टीप्लायर लेने से पहले कि अगर इस x को हम लोग हटा दें तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, इस y को हटा दें तो हटेगा कैसे, जब तक ये डिवीजन नहीं होगा। तो हम लोग लेते हैं यहाँ पर टेकिंग 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड एज ए मल्टीप्लायर। तो मल्टीप्लायर लेने पर आ जाएगा dx बाई एक्स बाई, यहाँ पर बच जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, यहाँ पर बच जाएगा dy बाई वाई बाई आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा dz बाई जेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देख लो यहाँ से x हट गया डिवाइड करने पर, तो 1 बाई एक्स 1 बाई वाई 1 बाई जेड एज ए मल्टीप्लायर। टेक एडिंग दिस dx बाई एक्स प्लस dy बाई वाई प्लस dz बाई जेड बाई, तुम देख लो बच्चों नीचे आ जाएगी डिनोमिनेटर में ये क्वांटिटी जो आ जाएगी ये आ जाएगी 0। तो ये जो अपन इसको करते हैं dx बाई एक्स dy बाई वाई प्लस dz बाई जेड बाई कितनी हो जाएगी 0। ओके बच्चों, तो इसको हमने किसी के साथ इक्वेट कर देनी है, dx बाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल टू dx बाई एक्स dy बाई वाई dz बाई जेड बाई कितनी हो जाएगी 0। इस 0 को हमने इक्वेट कर देनी है तो आएगी हमारे पास क्वांटिटी जो बचेगी dx बाई वाई एक्स dy बाई वाई प्लस dz बाई जेड इक्वल टू 0। एंड यू सी इट इज एन एग्जैक्ट इंटीग्रल, इट इज एन एग्जैक्ट इंटीग्रल। ओके स्टूडेंट्स, तो ऑन इंटीग्रेटिंग
on integrating log x log y, 1 by x log x, 1 by y log y, 1 by z log z इक्वल टू, अगर यहाँ पर log है तो यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट log लगा सकते हैं। कांस्टेंट में log c लगाएं, c डैश लगाएं, c लगाएं, कुछ भी लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ती है। log x y z इक्वल टू log c, दैट इज x y z इक्वल टू c। यहाँ पर हमने c डैश ले लेते हैं, c डबल डैश ले लेते हैं, कुछ भी ले लें। नंबर 2, कंबाइनिंग 1 and 2 to get complete integral। कंप्लीट इंटीग्रल इज इन द फॉर्म ऑफ फाई, इसको लिखना जरूरी नहीं है, फिर भी हम लोग लिख रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, ये हायर स्टडी में काम आएगी, और यहाँ पर आ जाएगी एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। दैट इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दैट टाइप ऑफ साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। नोट डाउन, जूम कर देते हैं। देखो बच्चों, स्पष्ट दिखाई दे रही है तुम्हें, इसलिए जूमिंग कर दिया गया है। तो बच्चों तुम लोग बताओ आज का लेक्चर कैसा था? गुड? yes, अच्छा लगा होगा, तुम्हें समझ में आया होगा। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक यू नो। तो हम लोग आज देखें साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसे धीरे धीरे सीखने की चीज है, आप लोग धीरे धीरे सीखने का प्रयास करें। कि आज वन ऑफ द टाइम बताया गया है, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे समझ में ज़्यादा आता जाएगा। तो आज तुम लोग के लिए कोई होम टास्क नहीं है, बस आप लोग आज इसे सीखें और होम टास्क आप लोग पिछला ही वाला बनाएं। तो आज का क्लास जो है साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर था, तो उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। और जैसा कि तुम्हें पता है कि लॉकडाउन, मोदी जी का कल भाषण आया था 8 बजे, तुमने सभी लोग सुना होगा कि लॉकडाउन 4 भी आने वाला है और इसमें नई कुछ रियायतें मिलेंगी, लेकिन इस बच्चों को, स्टूडेंट लोगों को कोई रियायतें नहीं मिलने वाली हैं। आप लोग अपना घर में रहो और ऑनलाइन क्लास करते रहो, सर से मिलते रहो। फिर एक बार मिलते हैं हम लोग, बाय बाय।